और जज्बे को लेकर चलेगा इंसान और जुनून मन में रखेगा तो क्या चीज उसके लिए मुश्किल है। समुद्र इतना गहरा है कि इतनी कोई भी ऊंचाई की छोटी नहीं है सारे वर्ल्ड। वहाँ पे काला पानी सुना है, देखा भी है। आज के जमाने में लोग ज्यादा जिम बहुत जाते हैं। या ये जिम कहाँ से शुरू हुआ? कभी सबमरीन में गए हो? यस। कैसा था? जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि सबमरीन ऐसे है, वहाँ पे क्या एक्चुअल एक्सपीरियंस है? गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हमारे वीडियो पॉडकास्ट में फाइनली एक गेस्ट आ चुके हैं जिनका नाम है कमांडर विजय गौड़। और मैंने उनसे जाना कि नेवी में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। एंड सस्पेंस की बात यह है कि वो मेरे दादाजी हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। क्या I'm fine, thank you. मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि नेवी में आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस रहा है ये, राइट? आपकी फैमिली में से भी कोई नहीं था नेवी में, तो आपके लिए कैसा था? मतलब बिल्कुल फर्स्ट ऐसे नेवी में से निकलना एंड वाओ। It was really wow. The Navy has been wonderful for me. Very adventurous, very enthusiastic, and I enjoyed fullest. मतलब नेवी में मजे करे आपने? I really enjoyed it. आप कौन सी एज से चले गए थे? I joined at the age of 24. 24। अगर जैसे न्यू कमर्स के लिए नेवी क्या है एक्सपीरियंस वाइज, की मतलब उनको कैसा लगेगा? अगर कोई न्यू कमर है उनके लिए वो मुश्किल भी हो सकता है आगे जाके, या फिर टफ ही है? क्या चीज है नेवी? It is a very simple force, ओके। at par with the Army and Air Force. But the only major difference is that Indian Navy is a three-dimensional force. ओके। Like the Navy operates at sea, through ships, underwater through submarines, ओके। and in the air through aircraft. We are all three wings. कभी सबमरीन में गए हो? Yes. कैसा था? जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि सबमरीन ऐसे है, वहाँ पे क्या एक्चुअल एक्सपीरियंस है? The experience of being in the submarine as a civilian outside, not in the naval submarines, is different. ओके। Those are kind of voyages, underwater voyages. But naval life is not difficult and not very hazardous, but it is very adventurous. जैसा कि मैंने देखा है काफी सर्दी से सुनामी आ जाती है, आपने कभी एक्सपीरियंस करा है इसको कि अगर आप शिप में जा रहे हो और सुनामी आ जाए तो मतलब कैसा लगता है? Tsunami is a very small little things. वेरी स्मॉल। तो फिर बड़ा क्या है? What happened was when I was posted in INS Vikrant, old ship, ओके। in 8345, we were sailing from Bombay to Cochin. ओके। And in the Arabian Sea, there was a cyclone storm, and it became severe cyclone storm. And we got stuck in the middle of the storm. The range of the cyclone storm is about, from the center, it is 1,000 kilometers. And we were just 400 kilometers near the eye, near the center. And for 6 hours, me and my JCO, we had to protect our equipments, which were outside. We both remained stuck with each other, holding our antenna. And one can imagine about 30 to 40 feet height waves, straight wave going on the rolling side and pitching side. Once you pitch, go up, the entire wave will fall on your chest. And for 6 hours, we continued like this, undeterred. लाइक वो साइक्लोन जो आया, मतलब That was a real adventure. रियल एडवेंचर ऑफ लाइफ। I mean, one of the most rare of the rarest adventures that people will, any naval officer will ever, or a sailor will ever enjoy. It was just a coincidence. And for me, I think entire life has been a sort of adventurous life. देखो ना, बचपन से काफी ना ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। मतलब मैं आपको तो देखो जानती हूँ, तो मैंने ये देखा कि मेरे को ओशन, रिवर, ये सब अच्छा लगता है। तो जब आपके लिए लाइफ में, जब देखो आपको नहीं पता था कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है जब सुनामी आएगी, ठीक है? आपका फर्स्ट मतलब क्या था? कि आप डर गए थे? No, नहीं, मतलब Fear is सुनामी आ रही है तो फिर fear is not in my ब्लड personality. ओह, इन योर पर्सनालिटी। Because right from the, I remember from my early, very tender years, rather, I have been a gringo boy, running, facing challenges.
and all kinds of challenges. At one time, I was about to be drowned, but then God helped me. And all around water, and with a bicycle in my hand, I was going down, and some vegetable curry it came on my this thing. At that time, I was in standard 8. But then I did not lose my patience. I did not lose my patience. I did not lose my wits. I continued. The moment I stepped up 2, 3 more steps, and then cycle handle went up, and I ran. और आपके पापा के बारे में क्या बताना चाहोगे आप कि आपके पापा कैसे थे, क्योंकि उन्होंने आपको नेवी में भेजा, सब अगर देखा जाए तो सब अलग अलग लाइन में गए और आपकी लाइन सबसे अलग थी, राइट? तो पापा के बारे में क्या बताना चाहोगे? My father was one of the most wonderful person. I would love to be his son in even next any generations. ओके, And he was another man who was never scared of anybody and scared of anything. But then he was nice, decent, and he inspired me a lot. हाँ, जैसे कि देखा जाता है कि एक पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो तो बच्चा और जल्दी ज्यादा आगे जाता है। Not only he, my father was a good footballer, ओह, so I became a good footballer. ओके, I played for the All India Inter-University Championships. I got all the colors from the Kurukshetra University. Blue color and red color, which is a rare award. When I joined Navy, I won all the championship of Western Fleet and Southern Command. So Western Command and Southern Command in the Indian Navy. And matter of surprise, when I was studying in my MSc, BSc and MSc, I used to get 100 rupees and 170 rupees per month as my scholarship. वाह, National scholarship plus the sports scholarship. And my fees used to be exempted always. I never paid fees. ओह, never been. So in those days, I used to get about 205 rupees per month. My father used to say, you are getting almost more than half the salary today, जी, ओके, and God bless. आशीर्वाद है आपका। Anika Toshiko. And not only this, my elder brother was also a hockey player. ओके, which one? There too, ना? Hockey brother. ओके, मेरे brother, हॉकी प्लेयर। Oh, wonderful. He was a master player. मुझे ये बात नहीं पता। And younger to him, he was a good volleyball player. Very good volleyball. दिल्ली में। ओके, तो फिर और कौन से? मेरे दादाजी, आपके दादाजी मेरे के पिताजी दादाजी से बड़े भी थे कोई? नहीं। वो सबसे बड़े। आपके दादाजी के पिताजी को मेरे पिताजी थे। ओके, आई मीन अच्छा, अपने दादाजी की बात करें। वो फुटबॉलर थे। ओके, और दादाजी हॉकी प्लेयर एंड आप नेवी प्लेयर। मैं was a footballer. ओके, I played, visited many universities before I joined Indian. And that's how my life has been. And believe me, to be in the defense forces is an experience unique in its own nature. Not only as a life in the armed forces, but the way they teach you how to conduct, how to play, how to put across yourself in front of others. And social life is something marvelous. And that cohesion पे हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे अफसर हो चाहे जवान हो, जॉब अपॉइंटमेंट, जॉब रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जॉब रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो अलग अलग है, बट वी आर नॉट अवे फ्रॉम ईच अदर, बी इट द फैमिलीज और बी इट द ओनली ऑफिशियल रहते हैं। फैमिली फ्रेंड्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब फैमिली ज्यादा सपोर्टिव होती है या फ्रेंड्स? मतलब आजकल तो कोई भी नहीं है। No, it is not like that. Family is supported in a family manner, but in the armed forces, it is unique. The entire force is a family itself. दिल से बना रिश्ता। दिल से बंधा रिश्ता. And there is no distinction between the Jawan and the officer. There is a distinction, but when it comes to the social life, सब like when there is a gathering of the ladies, correct?
and officer ladies are there, the Jawans ladies are. And gathering is going on. By chance, due to some reason, a lady is coming late. The senior most officer will stand up to greet her. It is not that she is a wife of a Jawan or so. No. तो नहीं उसका निकलना He will stand up to greet. And all the ladies are greeted with respect in the armed forces. And in the Navy, there is a culture. Whenever husband and wife are coming on board the ship, on the gangway, when you enter the ship, on the gangway, ladies come first. ladies come first. They are saluted. And while going also, ladies go first, saluted and followed by the officer. They are given proper marks of respect. And so is the case with guests also. Not only officers, ladies, and belonging to the particular force. Their guests also coming in, they are treated with honors. And they are given proper marks of respect. I have been very fortunate to be with the Madam Indira Gandhi, our former Prime Minister. I have been with three Prime Ministers, three Presidents of India. And I have been with Home Ministers, Defense Ministers, and so on. Well, lucky for me. And you learn a lot when you are with these people. हाँ इन्हीं में सच है अगर हम लोग अगर अच्छे लेवल के लोगों से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम काफी चीजें जानते हैं काफी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि क्या चीजें लाइफ में होती हैं I'll tell you a very wonderful experience of mine. It was in 1981. Madam Gandhi was the Prime Minister and she was visiting Lakshadweep Islands. And from Delhi she had to come to Cochin and then go to Lakshadweep. So she came to Cochin. I was given a specific charge on looking after Madam Gandhi with respect to her catering and offerings. So like she is most powerful, she was the most powerful. And for that matter, any Prime Minister is most powerful. VVIP. And then a lot of local dignitaries will come and meet them. And I was made in charge of that. So as soon as she came, sat down inside, many people came. In between my admiral, flag of Sir Marni, past Madam what he did right here. I went to her. Ma'am, what do you like to? What all you have? What all you have? She was very, very sharp lady. I said, ma'am, we have ABC. Says, but what about? The moment I finished, she asked, what else do you have? And by virtue of our upbringing in the defense forces, we are trained to inquire what all are the likes and dislikes of the visiting VP from whatever sources. So we try and do something our best so that the VIP gets a surprise. She said, what all do you have? My admiral was there and spontaneously I said, Madam, we have decoction coffee. Decoction coffee. Well, that is the most popular thing in Kerala. Okay, I will have that. Okay. The moment I returned back, I asked my steward to come. And behind me was my admiral. And he shouted at me. Who told him to this? It's not in the protocol. But anyway, if you have this, fine. Take it return. I told the steward, pour this coffee. He went and served. And she had one cup and she went, oh, good, very good coffee. Oh, wow. I want to have one cup, more cup. Like आपने वो सुना Then, another cup was so anyway, she enjoyed and went to Lakshadweep Islands. And 2 days later, she was to return. And after, when she asked for the second cup, then my admiral heaved a sigh.
थोड़ा सा उसको सकून हुआ, कोई चीज पसंद आ गई अब पसंद आ गया तभी वो मांग रहे हैं। So I got to Rose Parsley. So she gave my coffee. Yes, ma'am. He's a Not one, 2 flasks. 2 क्लास के साथ दिया। And not because of my coffee also. His performance was observed by Madam Gandhi during operations, during visit to Lakshadweep Islands. And for us, it was news of superb joys when we heard his chief minister. Because this chief. कोई मूवी रिकमेंड करना चाहोगे जो Another thing I will tell you. When I was posted in one of our most सबसे बड़ी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है यूनिट है आईएनएस वर्ल्ड द्वारका में है, उसके जामनगर में है, गुजरात से। उसके दौरान हमारी जो यूनिट थी उसकी गोल्डन जुबली हो गई थी, तो सीओ साहब ने मेरे को चुना, मुझे कुछ ऐसी स्कीम बनाओ कि नेवी का नाम भी हो और हमारी यूनिट भी हो। सो मैंने एक कंसेप्ट दिया कि सर हम ऑल इंडिया मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन करें, तो सारा ढांचा बना के मैंने दिया। तो मेरे को बोर्ड ऑफ सीनियर मेंबर बना दिया। उसके बाद हमने अफसरों की सिलेक्शन करी, सेलर्स की भी सिलेक्शन करी। और सेलर्स के पास उस समय 1991 की बात, तो की बात है, इतना साधन नहीं थे कि वो मोटरसाइकिल पर लेके जा सकते। सो अल्टीमेटली हमने 10 अफसरों की टीम बनाई एंड आई वाज द लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। आई अरेंज्ड the sponsorship of this expedition from Indian organization. और हमने 28 दिन की एक्सपीडिशन में सारे हिंदुस्तान में 12,200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से गए, 28 दिन में, and we returned back not on time, but we were 5 or 7 minutes before time reaching back to Palsar. बीच में एक हादसा हुआ, हमारे 2 अफसरों की एक मोटरसाइकिल स्किड हो गई। जैसे हम रायपुर से निकले, रायपुर से आगे एक जगह थी पकड़ के पास एक पुल है, नोना जीरा ब्रिज। बाद में हमें पता लगा फेमस है तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे एक अफसर की टांग टूट गई, उनकी थाइस और पिंडली चल गई थी, जल गई थी। तो मोटरसाइकिल की वजह से तो हमने रिपोर्ट किया सीओ साहब को। सीओ साहब ने कहा फर्स्ट गेट फर्स्ट एड, मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने सीओ साहब को रिपोर्ट किया, मैंने बात की। तो सीओ साहब ने कहा यू कम बैक इमीडिएटली बैक टू डिफर सर, आई एम नॉट कटिंग शॉर्ट द एक्सपीडिशन। The expedition will continue to be performed the way it has been planned and being executed. The 2 officers are being transferred, उनको ट्रांसफर किया हमने कमांड हॉस्पिटल के अंदर रात को, और हम वहाँ से बगड़ से संबलपुर होते हुए रोडकिला गए, वहाँ से कलकत्ता पहुँच गए, और अगले दिन हम उन्हीं अफसरों को कमांड हॉस्पिटल जाके वेरी हैप्पी। We, like when I was leading the team, so I was the commanding officer. Then my commanding officer was telling, you turn back, I just must have. He said, okay, go ahead. Because after all, the commanding officer wants to see whether he has got demoralized. No, I'm not demoralized, I'll go on. So this kind of इस प्रकार की जो जज्बात होते हैं ना, एडवेंचरस एक्टिविटीज के अंदर, एंड what itself is an adventure. एडवेंचर प्लस जज्बात, और जज्बे को लेकर चलेगा इंसान और जुनून मन में रखेगा तो क्या चीज उसके लिए मुश्किल है? कुछ भी। चलते रहो। कोशिश करने वाला की हार नहीं होती। हार नहीं हो ही सकता, पर डर लग सकता है। डर के नाम, मेरे पास कोई डर के नाम नहीं है। डर क्या होता है? डर इंसान का एक और होता है फिर उसको कहते हैं अंग्रेजी में
ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, सोच का एक छोटा तंतु होता है डक, ये बहुत हम उसको साइड कर दो। और जैसे आप लोगों को हर जगह जाना पड़ता था, तो अपनी फैमिली भी ऑब्वियस आपके साथ जाती होंगी, तो फैमिली के लिए क्या मुश्किल आती थी कि उनको शिफ्ट होना पड़ता था रेगुलर? मैं चाहता हूँ कि नेवी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारी जो शिफ्ट की अपॉइंटमेंट होती है, दैट इज द फील्ड अपॉइंटमेंट, और हमें घर मिल जाता है पोर्ट शिफ्ट। पोर्ट जैसे आई वाज इन बॉम्बे, तो आई हैड अ फ्लैट इन बॉम्बे, इवन टू द एक्सटेंट आई हैड अ फ्लैट ऑन मैरिन ड्राइव विद 5 बेडरूम फेसिंग द सी। उसके बाद जब हमें शिफ्ट करना पड़ा अंदर नेवी नगर में, तो मजा नहीं आएगा। इट्स लाइक आप फैमिली के लिए लग्जरी था। For me also, why not? For me also. If your family is happy, then you are happy more. हैप्पी वॉच। And another thing is when you come back after exercise of 1 month or 2 days, 20 days or so, when you come back and you want to take a taxi and come home, then your taxi will also do like shifts. ऐसे लगा शिप में होगी। हाँ, it happens a lot. जैसे हम कहीं से भी आएंगे तो ऐसा लगता है। I had the opportunity to serve with the Army, with the Air Force, with the Navy, and with the civilian department also, like India Meteorology Department. I served in Delhi airport, I served in Bombay airport, I served in Andaman also for 1 year. अंडमान निकोबार I was there for 1 year. वहाँ पे काला पानी सुना है, देखा भी है। पानी काला नहीं होता, समुद्र में पानी काली क्या है काले पानी की सजा? काला पानी जो कहते हैं कि जब हम मद्रास या कलकत्ता से जब अंडमान जाते हैं, जब पहले जाया करते हैं शिकारों से, तो उसमें समय बहुत लगता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन मिलेगा था। आजकल तो जब हम गए थे तो 4 दिन के बाद हम पहुंचे थे, और वो जाते थे बोट्स में, तो उसमें ज्यादा समय लगता था। तो होता क्या है कि जब आप समुद्र के बीच में जाते हैं, गहराई बहुत ज्यादा, लाइक 3000 मीटर भी हो सके, 3 किलोमीटर, जो समुद्र की मैक्सिमम गहराई है सारे वर्ल्ड में, वो है 11 किलोमीटर। और जी 11 किलोमीटर समुद्र इतना गहरा है कि इतनी कोई भी ऊंचाई छोटी नहीं है सारे वर्ल्ड में। हाँ जी, माउंट एवरेस्ट इज द टॉपेस्ट, वो भी 3 किलोमीटर के लिए 29,000 फीट, और ये 11 किलोमीटर। मतलब सुनने में इट्स लाइक लुक लाइक वेरी इजी कि 11 किलोमीटर। और जैसे पहाड़ हैं हमारे आसपास, ऐसे ही समुद्र में भी नीचे पहाड़ हैं, बिकॉज आई स्टडीड ओशनोग्राफी। उसमें भी जैसे यहाँ नदियां बहती हैं, उसमें करंट बहते हैं सिर्फ, और इन करंट्स के कारण ही जब हमारी मानसून होती है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से चलती है, उधर से घूमती हुई और आपके मेगाफेसिस के घूमती हुई एरिया आती है, कोचीन के ऊपर टच करती है, जाके टच करती है, और फिर इसकी क्लोज होती है। जैसे आपको समुद्र, आप वहां पे रहे हो, ठीक है, कोई मन नहीं करा कि एक बार स्कूबा डाइविंग या फिर जाते अंदर हाँ, ये हमने। और शार्क मिली है? Shark is a very good fish. It's a very good fish. I enjoy eating shark. Eating? Yes, बहुत खाई हम। Like अंडमान में तो shark is a wonderful species, और बहुत मिलती है। और वो इतनी बड़ी होती है? छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। बड़ी तो इतनी भी होती है, दो आदमी को अटैक करती है। हुआ कुछ ऐसा? ऐसा हुआ, हमारा एक शिप कोचीन से लक्षद्वीप आइलैंड में गया हुआ था ट्रैकिंग के लिए, तो सडनली न्यूज केम, सडनली खबर आई कि वहां पर एक कोई इंसान वहां डूब गया है, या कोई सेलर ऑन बोर्ड हो गया, सब जानने की। तो हमने सर्च ऑपरेशन किया, तो हमने डाइवर भी डाउनलोड किया, हेलीकॉप्टर से सर्च किया, तो अल्टीमेटली नहीं मिला, तो वी वर पुलिंग बैक ऑन दी फोर्सेस। जैसे ही हमारा एक जवान सेलर को हम ऊपर लिंच के साथ ऊपर उठा रहे थे, तो एक सेलर उधर किया, पीछे बहुत बड़े सारा फॉर ऐसे पानी, एंड दैट इज अ शार्क।
और शारदा जैसे ही वो सेलर को उठा रहे थे हम 3 दिन में तो आ गई, हाँ, तो उसने जंप करके उस जवान की एडी पकड़ ली अच्छा, और वो एडी खा के चली गई। मतलब वो भी होता है सच में। यस इट हैपेंस। कभी आप उसको खाओ, कभी वो आपको खा सकती हो। तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम। जैसा आप करोगे वैसे आपके साथ होगा। But on the whole, to be in the defense is there are two things. Either you go for money हाँ, or you go for एडवेंचर। adventure and happiness and self-contentment. That is something which I have enjoyed. जैसे आपने कहा कि तीनों चीजें लाइक नेवी, इंडियन आर्मी और फ्लाइंग आर्मी, ठीक है, तो ये लोग साथ में काम करते हैं, तो कभी इन फेस आप लोग मिले हो उनसे? अनेक बार हमारी जब एक्सरसाइज होती है हम सब इकट्ठे ही होते हैं। ओके, तो तीनों They come to our ship, we go there, and we are like friends. मतलब एक अच्छा We एनवायरनमेंट। are sister service to each other. And even after retirement, we are the same. Like I have come back to my home place. If I go to army cantonment in Ambala or Air Force cantonment, Air Force station, there is no difference. I also say, oh, sir, come. कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहते हो कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? भगवत गीता से आप लोगों को क्या लाइफ लेसन देना चाहते हो कि क्या भगवत- सीखना चाहिए? भगवत गीता का सबसे बड़ा लेसन ये है, एक तो अपने पर विश्वास रखो। और अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है, क्या दूसरी बात, साफ कहो, स्वच्छ कहो, निर्भीक कहो और बढ़ते जाओ। फ्री, फ्रैंक and fearless, but in a friendly manner. That is my principle of life. 4F. और Free, frank, fearless, but in a friendly manner. एक फ्रेंडली मैन। ये तो गुस्से में ही सब कुछ होता है। कुछ इंसानों का कुछ बोल ही ऐसा होता है, यानी उनका टोन ही ऐसा होता है। मे बी बीइंग इन द डिफेंस ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू एक्सरसाइज मोर, तो लगता है कि बहुत गुस्से में है, एक्चुअली गुस्से में होता है। And another thing I have observed in defense is your senior officers, those who लाइक बटरिंग। give you hard tasks ओके, and those who observe you for a long time, they abuse you. They give you toughest time. And after a short time, compared to your tenure there, they will back to the most. Yes, otherwise, this happened with me. अच्छा, When I joined, I was in Dehradun, so my admiral change. You had one kid. So I had to go and put him up in Dayton. So yeah, he's here left and right. And yes, sir, yes, sir, yes, sir. 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks. During the whole 20 days or so, he said he's not a good being. He's not responding. Yes. One fine day, good morning, sir. Yes, sir, very good about morning. I said, morning is very good. That was, I think, about nearing 20 days. हाँ, Okay, morning is up. This is I said, okay. Come inside, sit down. Against. Your coffee now. Steward paid and brought 2 cups for you. Coffee we put up. I said, first thing. I'm telling you, I have, yes, sir. Just brought the cup here, kept it down. Your senior officers, those who लाइक बटरिंग। give you hard tasks ओके, and those who observe you for a long time, they abuse you. They give you toughest time. And after a short time, compared to your tenure there,
living like within the hospital. This happened with me. अच्छा When I joined, I was in Dehradun, so my admiral changed. You had to take. So I had to go and report him every day. So yeah, this is here left and right. Yes, sir, yes, sir, yes. 1 day, 2 day, 1 week, 2 weeks. During about 20 days or so, he said he's not rebooting. अच्छा He's not responding. Yes. One fine day, good morning, sir. Yes, sir, very good about morning. I said, morning is very good. That was, I think, about nearing 20 days. हाँ Okay, morning is obvious. I said, okay, come inside, sit down. Against. So, ये coffee लो. Steward came and brought 2 cups of water. Coffee put up, said first thing. I'm telling you, have, yes, sir. Just brought the cup here, kept it down. So it's not a big, you see, Pavel, हाँ perfect. And you see, Pavel, perfect. From that day onwards, we were like good friends. He was senior, yes. I should not mix up with the level, हाँ but then he always treated me with respect. And I always gave him fullest thanks. बतान द फ्रेंड्स आपने बनाए हैं। सब अच्छा था बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ कि लोग डिफेंस में जाए, लोग डिफेंस में जाए पर लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। डिफेंस डिफेंस हाँ लोग को डर रहता है थोड़ा सा ये डर तो बल्कि नॉर्थ इंडियंस को डर लगना ही चाहिए। सिंस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो इन्वेशन हुई नॉर्थ में। अच्छा और चीज हमने परकोलेट की थी, वो सन था जब पहली बार आर्मी ने भी एयरफोर्स के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि हम लड़कियों को भी कमीशन देंगे। वो भी हमने बताया, हमने स्कूल में विजिट किए, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी में भी गए, सब जगह। क्या वॉर्स होते हैं नेवी में, मतलब कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं आप बता जब सकते भी हो? देश के ऊपर कोई वार थोपा जाता है, ये तो थोपा जाता है, चाहे नेवी कंट्री हो या फिर ऑपरेशन, तो उसके अंदर तीनों सशस्त्र सेनाओं का अलग अलग रोल होता है, परंतु सबका रोल एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक ही एम होता है कि इनको वार जीतना है। जीतना है। जैसे हमने 1971 अच्छा क्या रहा उसमें आपका एक्सपीरियंस? उसमें मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा, और जो मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है उसके अंदर एक्सपीरियंस यही रहा कि इट इज समथिंग विच इज यूनिक इन इट्स ऑन सेल्फ। बहुत ही एकदम से अजूबा है, अजूबा और एक जुनून होना चाहिए किसी को आर्म फोर्स, आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे अफसर हो या जवान हो। ये नहीं कि जवान या सेलर्स की लाइफ कुछ अलग है और अफसर की रैंक में फर्क है, और लाइफ सबकी एक ही जैसी है। और बहुत ही सोशल लाइफ, और वो मिलजुल के रहते हैं हम आपस में। और जब वार होता है, जैसे मैं विक्रांत में था, विक्रांत का जो अटैक करने का रेंज है वो है 1000 किलो। 1000 किलोमीटर। अगर फर्स्ट करो आपने एक पॉइंट पे विक्रांत फोकस एंकर कर दिया, एंकर का मतलब समुद्र में खड़ा है वो, तो उसके चारों तरफ वो 1000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। जैसे यही तो हुआ था कराची, इसमें पाकिस्तान वार। हाँ जी कराची के पास विक्रांत था, चुपचाप वो वापस भी आ गया। लेकिन उन्होंने बड़ा कोशिश की पाकिस्तान वालों ने इसको टोने की, तलाश करने की, अपनी खुपरी सबमरीन भेजी, उसको पता ही नहीं लगा, तो वो गलती से चली गई विशाखापट्टनम में, तो उसी एरिया में जाके उसको और मारते। सबमरीन को मारने के लिए एक विशेष प्रकार के अंडर वाटर मिसाइल होते हैं, उसको कहते हैं टॉर्पेडोस। तो टॉर्पेडो अटैक हुआ उसके बाद। तो विक्रांत के अंदर ही था? नहीं, विक्रांत में भी था। विक्रांत अकेला ऑपरेशन नहीं करता,
नेवी एक बहुत से शिप्स अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग रोल प्लेइंग होता है, जैसे आर्मी में भी, जैसे एयरफोर्स में भी कुछ जेट्स होते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, ऐसे आर्टिलरी होती है, इन्फेंट्री होती है और अलग तोपें होती हैं, फिर ऊपर से अटैक होता है। तो इस प्रकार से सबका एक मतलब कलेक्टिव एफर्ट, सबका मिलजुल के एफर्ट होता है ताकि इस प्रकार से एफर्ट्स करें और आपस में इस प्रकार का सद्भावना रखें कि हमें तो युद्ध जीतना है। वहां पर यह नहीं होता कि नेवी आगे है या एयरफोर्स आगे है, जिसको मौका मिले उड़ा लो, और तीनों इकट्ठे, सबको पता होता है कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, कैसे मार रहा है, कब मार रहा है, कहाँ मार रहा है, सब पता होता है। आप भी किसी वॉर में इंक्लूड थे क्या? आपने मतलब अपनी नहीं, मैं बार में तो इंक्लूड नहीं रहा। हाँ। उस तक मैंने ज्वाइन 71 बार के बाद में की थी, बट मैंने एक्सरसाइज में बहुत पार्टिसिपेट किया। जब मैंने बताया एम्फीबियन एक्सरसाइज, ये तीनों सेनाओं की इकट्ठे होकर एक एक्सरसाइज। फिर मैं फॉरेन कंट्रीज के शिप्स में विजिट किया, HMS हरकुलिस घूमने में आया था। विजिट करते हैं, जब हमारे शिप भी जाते हैं तो ब्रिटेन नेवी के शिप्स आए थे, बहुत अच्छे से फ्रेंडली थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं विक्रांत में था तो चेयरमैन पे कमीशन, 5th पे कमीशन के चेयरमैन, उनकी टीम आई थी। तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह भी हमारे शिप में थे, तो मेरी फोटोग्राफ भी है उसके, तो उसके साथ और चेयरमैन जो था अपने पे कमीशन का, रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा और उसकी टीम ने कहा कि हमें एक्सपीरियंस देखना है कि नेवी में कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे एडमिरल साहब ने कहा कि हम तो तैयार हैं। तो वो जानना चाहते थे मिसाइल बोट के दौरान, मिसाइल बोट होती है जिसमें बड़े बड़े मिसाइल फायर करते हैं। तो बॉम्बे हार्बर से हम लोग को मिसाइल बोट्स में बिठा दिया, मैं भी था वहां पर, स्टार्ट किया। और सही बात तो यह है कि हमारा बॉम्बे के अंदर जो किसी भी हार्बर में एक लास्ट बॉय आता है, बॉय, आउटर बॉय, ठीक है, तो वहां से बाहर जाके ही हम अटैक करते हैं, एक्सरसाइज वहीं से स्टार्ट होती है। पर ये तो मिसाइल बोट में बैठ के वैसे ही पेशेंट हो रहे थे सब लोग, चीफ जस्टिस और दूसरे बस नंबर, तो घबरा रहे थे ये क्या हो रहा है। रोलिंग की छोटी होती है ना कंफर्टेबली, तो शिप के साइज में सब समझो कि एक विक्रांत के जहाज के साइज में कम से कम हमने 50 मिसाइल उठाई। मिसाइल को विक्रांत इज सो बिग, तो यूं भी होगी और यूं भी चलती जाएगी, यूं चलती जाएगी। तो उससे क्या हुआ कि वो कहने लगे सर हम तो ज्यादा दूर नहीं जा सकें, ज्यादा दूर नहीं जा सकें, अब हमें अभी फायर करके दिखाओ। हमने कहा सर अभी तो फायर कर नहीं सकते, बाउंड्री नहीं है। क्या जैसे ही हम फायर पे गए उससे पहले थोड़ा सा हमने फायर किए मिसाइल, और वो तो हिल गए। तो मिसाइल बोट हिल जाती है सारी, कि भाई जैसे आप बंदूक फायर करते हो तो पीछे आके कंधे पे लगती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मिसाइल फायर हो जाएगा ना तो रिकॉइल तो आएगा, तो उसमें क्या होता है यूं हो जाती है, हिल जाती है। ये सब लोग घबरा गए, चलो हम नहीं जाते आगे, हम नहीं, तो हम आधे में पहले ही उनसे वापस ले आए। तो हमारी जो लाइफ होती है रियल लाइफ, उसको देखने के लिए एक जज्बात चाहिए, उसको सहने के लिए एक हिम्मत चाहिए। जज्बा, मेरे चैनल का नाम भी जज्बा है, ये आपके में जज्बा था तो जा सकते हो। तो जैसे कि अगर देखा जाता है मूवीज में कि नेवी है, क्रूज है, ठीक है, उसमें दिखा देते हैं कि लाइक लग्जरी लाइफ, ऐसा तो लग्जरी लाइफ है आप लोगों की? हमारी लिए लग्जरी लाइफ नहीं है, on a board, on a ship, मतलब लग्जरी है, ये क्या है? Luxury, it's not a luxury. You can't term it as a luxury. Luxury is not with leisure, Okay. layers, but it is luxury with adventure. And with adventure. And then you should have that gut feeling that you want to enjoy this. And that is why selection in the Army, Navy, and Air Force is not as easy. Not as easy. अगर आप एडवेंचर की बात करो तो आपके लिए सबसे अच्छा एडवेंचर क्या रहा है वहाँ पे? जो आपका फर्स्ट बिगेस्ट वाव एडवेंचर था? मेरे लिए वाव एडवेंचर तो रहा है, I have been the ace puller, boat puller of the Indian Navy.
or Western Fleet, when my team, headed by me, won the what POC, what of that? That is the Fleet Trophy. Okay, but trophy. That is not a Fleet POC. So that was a great for me, my achievement. My achievement means my board members' achievement. Remember And it happened twice in a year, 2 times, in a year. 1984 and 85. Both years, my captain commanding officer was very thrilled. And like wow, मतलब first time of कुछ चीज मिली हो तो अच्छा लगता है काफी. Thereafter also, वो एज अ स्टार्टर हम लोगों को देखनी चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि नेवी एग्जैक्टली क्या है, जिसमें बताया गया हो कि नेवी क्या है. these days there are far too many Hindi films, and more so on your YouTube. Okay, बहुत सी हैं बहुत सारी जो आपको, और इंडियन नेवी ने भी बनाई. आपकी इंडियन नेवी You will find on the YouTube, Indian Navy, इंडियन नेवी YouTube पे पिक्चरें आपको मिल जाएंगी. हाँ, और ऑपरेशंस को भी दिखाएंगे, ऑपरेशन और नॉर्मल को भी दिखाएंगे, सबमरीन को भी दिखाएंगे. aviation. And another good thing for me has been luckily that I have been made a specialist of underwater operations, on surface and air, with regard to the weather conditions. Specialist. You were Yes. submarine. I studied in IIT Delhi also. I did my courses from WMO, World Meteorological. और क्या क्या skills हैं मतलब आपकी? I've been a member of the Service Selection Board, selecting officers for Army, Navy, Air Force. I'm specialized in that. I've been at GTO, very, front processor in SSB, out of the 3 SSBs. Then another thing has been that all around the Indian Navy, I have been a recruiting officer every day. Okay, I feel. And what to say that it was only because I was a hard talk master and strict in selection. तो आप लोगों ने इस चीज के दौरान क्या खोया क्या पाया? फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहते हो? I think I will say that I have not lost anything, I have gained. And We have family. tons and tons of friends, and marvelous friends. Marvelous family. And because of them, And uh, and even today we continue to be very good friends and very good family friends. If there is a marriage, they will invite us. If there is some special ceremony, they will come there. And likewise, when we have something, we like to invite. So it's going on life, wonderful. And it is only good to make more friends. It is my personal belief. Family will always be with you. Best is you make your friendly families, because friends will stand with you first. Family will come later. हाँ, पहले छोड़ जाते हैं. Family will come later. Like wherever you live, immediate neighbors are the first. हाँ, नहीं बता दो. Others will come. But later. Others will come. Will come means take time. हाँ, with The will is a word. It's a little delayed. But I'm lucky. I really learned the Indian system. And I think my life has been wonderful. I continue to enjoy it today. Recently, when the new Vikrant was commissioned, so it was a great honor for me and my wife कर गए थे ना. that we were specially invited to be a witness to the commissioning ceremony of new INS Vikrant. The good doctor was very well. आपको ट्रस्ट. और जैसे आपने कहा कि आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो एक्सरसाइज क्या एग्जैक्टली? काफी ज्यादा वर्ड यूज हो गया एक्सरसाइज. क्या चीज मतलब एक्सरसाइज बेसिकली इंसान को अपने आप को अपने बीरिंग्स अलर्ट करने के लिए, अपनी सोने वाली लेजीनेस हटाने के लिए. लेजीनेस को बताने के लिए, इसको अपना लो तो जिंदगी भर फ्रेश रहोगे. नहीं अपनाओगे तो लेजी से लेजीएस्ट हो जाओगे. लेजी और लेजीएस्ट
रिलीजियस के बाद की डाउन। तो आपकी की क्या है, मतलब आपको अगर बताना है कि वार्म अप करो जिससे लेजीनेस हट जाए तो क्या करना चाहिए हमें? वेरी सिंपल, गेट अप इन द मॉर्निंग, अच्छा। सिट डाउन ऑन योर टोस, हाँ, पैर के ना नीचे रखिए उठा के, टुकड़ों बैठ के ऑन नीज, ओके। हैव 2 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, हम्म, 2 or 3 काली मिर्च। हाँ जी। पर हॉट वाटर और काली मिर्च गर्म होगी गर्मी में। पेट में तो आग लग नहीं सकती, मेरे तो आज तक लगी, मैं कितने सालों से खा रहा हूँ। सो आपको अपने पेट को इतना स्ट्रांग कर दो ना, हाँ, और पेट को आप सॉफ्ट करोगे, पिज्जा खाते रहोगे, ये खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। चाउमीन पाउमीन, हाँ, that's true. जो आज के जमाने में लोग ज्यादा जिम बहुत जाते हैं, या ये जिम कहाँ से शुरू हुआ, कब आया? हमारे टाइम में जिम था ही नहीं, नहीं था। तो हमारे टाइम में लोग सारा काम करते थे। एंड जिम इज आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल एक्सरसाइज। और अगर देखा जाए तो जिम में ना वो एक्सरसाइज होती है जो हम लोग पहले करते थे, सारे अपने टाइम पे करते थे। बिल्कुल। लाइक ऐसे काफी सारी एक्सरसाइज है, मतलब मैं तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, 10 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, मैं आप कर लो, आपका शरीर हमें सारा दिन प्रफुल्लित रहे। अच्छा, क्या क्या है? हाँ, यूं करो, that- ठीक है, हम्म, 20 बार यूं करो, ठीक है, हम्म। ताड़ी नहीं मारनी, ये चीज को छोड़ Yes. सकते हो। हाँ, 20 बार ये मारो, 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 ये 9 एक्सरसाइज। ये मेरी चाची जी करते हैं रोज सुबह। एंड सीरियसली इन माई 3 years ऑफ मैरिज मैंने देखा ही नहीं उनको बीमार, टचवुड, बट मैंने उनको बीमार नहीं देखा होएंगे नहीं, तब भी। मतलब एक बार बस जब अभी एक क्लास चिकनगुनिया समथिंग हुआ था तब ओ, ठीक है, बीमार हो गए थे, ठीक है। बट ऐसे हाँ, बट उसके अलावा अच्छा टचवुड दूसरा ये, बीमार नहीं। दूसरा Okay. ऐसे किधर से कर लिया, हाँ, यूं मारो, यूं मारो, यूं मारो, कभी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो। चैलेंज और वेट लूज कैसे करें फिर अगर जिम नहीं जाना तो? बड़ा सिंपल है, कैसे? वेरी सिंपल। आलू छोड़ दो, आलू। ओके। चावल छोड़ दो, गेहूं की रोटी छोड़ दो, दिन में जितनी मर्जी रोटी खाओ, रात को उससे आधी खाओ, एंड हैव लॉट ऑफ व्हाट? सैलाड। ओके, सैलेड। लंच से पहले हो पूछो, दादी से कितना खाता हूँ, प्लेट भर के लंच में खाता हूँ। उसमें खीरा होता है, ककड़ी होती है, चुकंदर होती है, गाजर होती है, टमाटर होते हैं, प्याज होती है, और जो कुछ मिल जाए दाल। फ्रूट खाता हूँ, शाम को नमकीन मतलब खाना, कौन को हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी फूड। और बाजार का खाना छोड़, वी डोंट ईट। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी जबरदस्त चीज हुई है जो आपके लिए मतलब द बेस्टेस्ट, और लाइक आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो ऐसा जो सबसे ज्यादा जबरदस्त हो? मेरे जीवन में तो इन एवरी अपॉइंटमेंट आई हैव हैड ए वेरी जबरदस्त जबरदस्त एडवेंचर adventure, not an adventure. एक्सपीरियंस। Like before I became equivalent to major or lieutenant, when I was a young lieutenant, I used to be a state PR. My public relation has always been the best. And I think for that I was known for it. And it used to be like, even my sister died after going. She died and I came back. Fourth day I got a phone call to return for duty. The report said you leave cancer. Because parliamentary subcommittee was coming, so I was in charge of it. Wherever I have been, whichever unit I was there, always it was a matter of God will be chief liaison officer. और कुछ ऐसे जैसे कि हमने बताया कि बुआ जी की डेथ हो गई थी, सिस्टर की, ऐसा कोई पर्सन जिसके जाने से सबसे ज्यादा यू लाइक गेट हर्ट? ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जिसके जाने से गेट सबसे ज्यादा हर्ट, यू चले गए? नो वन? इन अ डेड वे, नॉट लाइक फैमिली से निकल गए? Whichever way, I only felt concerned about one of my immediate seniors. We used to be known in the Navy like brothers. We were Hari Kachke Gupta and I was Vijay Kaur.
He was about 4 or 5 months senior to me. Okay. But we used to be known as twin brothers because in the series, if I am wearing this, he will be this color. Same trouser. If I am wearing this chappal, he will wear this chappal. Okay. It was like a carbon copy. अच्छा. But then when he died, I felt something. And unfortunately, I was not in my unit at that time when he died. And he used to be using my motorcycle. I used to have a ESD motorcycle. He had a scooter. And unfortunately, on the day when he met with an accident, that day he was not using my motorcycle, he was using my scooter. He came under a hit and run. And 1 month and 4 days after his marriage, he died. But I mean, it's a part of it. Wonderful. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. नेवी की काफी एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करे हैं. बस एक कुछ बात बता दो जो आप बताना चाहते हो कुछ स्टार्टर्स के लिए कि उनको नेवी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. I will say and I will recommend to everyone In front of camera, please. that they must always at least make an effort to join the Indian Defense. And if I can be of any help and use to any youngsters, my services are always और देखते हैं. as an expert in the field of selection. Whether as GTO or as a interviewing officer or as a psychologist. तो ये आपका जज्बा था. This is not a mantra. This is जज्बा. This is just one. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Thank Have a you. great time. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात. Thank you very much.